તે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવશ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. એવું અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીડા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત જ છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. વૃક્ષોનું તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયું એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવશ્રીના મહાપુરાણનું આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું છે. એ સોગાનીજી છે. પૂજ્ય સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. ભયંકર વિપરીત પરિણમન. એ પરિણમનનો ચિતાર અને એ પરિણમનના નાશ કરવાનો ઉપાય, એ સંબંધીની જે પરિચર્ચા, એ વિષયનો આ અધિકાર છે. એને કર્તા કર્મ અધિકાર કહીએ. એ કર્તા કર્મનો પ્રારંભ કેટલીક ગાથાઓ ચાલી છે. પ્રારંભની 69 થી 72 સુધીની. 73મી ગાથામાં મથાળામાં એ પ્રશ્ન ચાલ્યો છે કે આ આત્મા આશ્રવોથી નિવર્તે તો કઈ રીતે નિવર્તે, કઈ વિધિએ નિવર્તે, કાર્ય પદ્ધતિ શું નિવર્તવાની, એવો પ્રશ્ન છે. ઉત્તરરૂપ ગાથામાં પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ છે એમાં સ્થિરતા અને લીનતા કરવાથી આશ્રવોથી નિવૃત્તિ થાય એવી સીધી વાત છે ઉત્તરમાં. તેમ છતાં એ લીનતામાં ને સ્થિરતામાં કેવા ભાવ થાય છે ત્યારે લીનતા અને સ્થિરતા થાય છે એનો ભાવાત્મક બહુ સુંદર ચિતાર ટીકાકાર આચાર્ય મહારાજે અહીંયા ટીકાની અંદર
વિસ્તારથી લીધો છે. પહેલો શબ્દ જે છે અહમ ઇક્કો, હું એક છું. તો હું એક છું એ શા કારણને લીધે એક છું, અથવા મારું જે એક અખંડ અભેદ સ્વરૂપ છે એને હું કેવી રીતે ભાવું છું, કેવી રીતે અવલંબું છું, એ પદ્ધતિથી આચાર્ય મહારાજ આ કથન કરે છે. ફરીને ચાલી ગઈ છે પહેલી લીટી, પણ થોડું અધૂરું રહ્યું છે, એ પૂરું કરીએ. કે હું આ આત્મા એટલા શબ્દોમાં પણ ઘણો ભાવ ભરેલો છે. આ એટલે વિદ્યમાન. આ હું આત્મા એમ નહીં કહેતા, હું આ આત્મા એમ કહે છે. તો આ કહેતા વિદ્યમાન. ક્યાંક વિચારમાં ક્યાંક ઊંડી ઊંડી ગુફામાં ચૈતન્ય પીડ્યો છે એમ નહીં. વિદ્યમાન એટલે જાણે કોઈ નજર સામે હોય એમ વિદ્યમાનતા, પોતાની વિદ્યમાનતા જ્યારે જોવામાં આવે છે ત્યારે સન્મુખતા વિના એ જોવાય નહીં, એ સમજી શકાય એવી વાત છે. કે સન્મુખતા વિના આ આત્મા એમ કેમ જોવાય? પોતાને જુએ છે, પોતે પોતાને જુએ છે. જોનાર પોતે, જોવાય છે પણ પોતે. એને એમ કે છે કે હું આ આત્મા. એટલા ભાવ પીડ્યા છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચનોથી આપણે સૌ પરિચિત છીએ. એ પરિચિત ધ્વનિ અને પરિચિત પ્રવચનમાં પણ આ વાત લગભગ બધા પ્રવચનમાં છે કે ગુરુદેવ શ્રી પ્રવચન શરૂ કરતા ત્યારે અહીંથી શરૂ કરતા, કે આ આત્મા એમ કહીને શરૂ કરતા. નિત્યાનંદ, નિર્મળાનંદ, જ્ઞાનાનંદ, પછી મહિમા. એ કહેવામાં એ આત્માને ભાવતા હતા. એ વખતે સ્વાધ્યાય કેવળ શબ્દોના અર્થઘટન કરવાનો પ્રસંગ નથી. જ્યારે ગુરુદેવના સ્વાધ્યાયને આપણે સ્મૃતિમાં લઈએ છીએ, સ્મૃતિમાં પ્રત્યક્ષ કરીએ, અને હવે આ ટીકાને આપણે એ જ રીતે મેળવીએ, તો સાધક દશામાં અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કયા પ્રકારે છે એ સ્પષ્ટ થાય એવો વિષય છે. અને એ નજરથી એ જોવા જેવો વિષય છે, એ નજરથી અવલોકન કરવા જેવો વિષય છે, એ નજરથી એ અભ્યાસવા જેવો વિષય છે. તો એમાં કેવી આત્મભાવના છે? અહીંયા તો પ્રત્યક્ષ શબ્દ વાપરેલો છે પોતે, કે હું પ્રત્યક્ષ અખંડ છું. ચિન્માત્ર જ્યોતિ હું કેવો છું? અનંત ચિન્મ. ચિન્માત્ર જ્યોતિ કે હું પ્રત્યક્ષ છું. તો એ પ્રત્યક્ષ શબ્દ ન આવે તો પણ આ આત્મામાં એ વાત વિદ્યમાનતાની, પ્રત્યક્ષતાની, પ્રગટપણાની વાત પ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે. એવો જ એ ધ્વનિ છે કે જેમાં એ ભાવ આપોઆપ પ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે. પ્રત્યક્ષનું વાચ્ય એની અંદર આવી જાય છે. આ એમ કહેતા એની અંદર એ વાચ્ય આવે છે. તો એનો અર્થ એ થયો કે સામાન્ય રીતે વિદવત્તામાં જે શબ્દોના અર્થઘટન ઉપર થઈને અધ્યયન, શાસ્ત્ર અભ્યાસ અથવા સ્વાધ્યાય પૂરો થઈ જાય છે, એના બદલે આચાર્યો અને મહાપુરુષો, ગુરુદેવ જેવા જ્ઞાનીઓ મહાપુરુષો, એમની સ્વાધ્યાયની પદ્ધતિ એવી હતી કે આત્મભાવના સહિત પરમાગમોનું અધ્યયન ચાલતું. જેને પ્રવચન સારની અંદર એમ કહ્યું છે કે ભાઈ તું આગમનો અભ્યાસ રાખજે. જીયા જીયા
ઘણા એમ સમજ્યા છે કે 56 કુમારિકાનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારે સ્વાધ્યાય આત્મભાવનાનો પ્રસંગ છે અને સમ્યક પ્રકારે આગમનું અધ્યયન રાખજે એવું જે પ્રવચન સારની અંદર આચાર્ય મહારાજ કહે છે એમાં પણ આ વાત છે. આત્મભાવના સહિત આત્માને પ્રગટ પ્રત્યક્ષ લક્ષ્યમાં રાખીને આત્માની વાત જ્ઞાનમાં અને લક્ષ્યમાં વિશેષપણે આત્મભાવનો આવિર્ભાવ થાય એ પ્રકારથી જો થાય તો આત્મરસ એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જી વિદ્યમાનતામાં અસ્તિત્વની મુખ્યતા છે પણ પ્રત્યક્ષ અસ્તિત્વની મુખ્યતા છે. બે વાચક શબ્દો જુદા છે, વાચ્યમાં જે અંતર છે એ છે, પણ વિદ્યમાનતા એટલે હયાત છું, પણ હયાત છું એટલે ક્યાંક હયાત છું, ઊંડે ઊંડે એમ નહીં, પ્રગટ પ્રત્યક્ષપણે હયાત છું. એવી રીતે સ્વરૂપને ભાવવામાં આવે છે. અનુભવ પ્રકાશમાં દીપચંદજી એમ કહે છે, એક સાધ્ય સાધકનો અધિકાર લીધો છે એમણે, અનેક બોલ લીધા છે સાધ્ય સાધકના. એમાં એમ કહે છે કે શબ્દ સાધક છે, અર્થ એનું સાધ્ય છે. જ્યાં શબ્દ સાધક છે ત્યાં અર્થ સાધ્ય છે, પણ જ્યાં અર્થ સાધક છે ત્યાં જ્ઞાન રસ સાધ્ય છે. શું કહ્યું કે અર્થ છે એ માત્ર શબ્દનો અર્થ સમજાય ત્યાં વાત પૂરી નથી થતી. સાધ્ય સાધકનો અધિકાર ત્યાં પૂરો નથી થતો. અર્થ તો ત્યાં સાધક થાય છે, જ્યાં અર્થ સમજાય છે ત્યાં અર્થ પાછો સાધક થાય છે, સાધ્ય થયેલો અર્થ જ સાધક થાય છે અને એમાંથી જ્ઞાન રસ સાધ્ય થાય છે. જ્ઞાન રસ કહો, ચિદ રસ કહો, આત્મરસ કહો કે અમૃત રસ કહો, એ સાધ્ય થાય છે એમાંથી. આવું એક શબ્દથી જે અધ્યયન કરવાની કાર્ય પદ્ધતિ છે એને અનુભવ પ્રકાશ અનુભવનો ગ્રંથ હોવાથી એ પદ્ધતિને સાધ્ય સાધક અધિકારમાં અનેક રીતે વર્ણવતા એ વાત પણ એવી રીતે વર્ણવી છે. શૈલી ઘણી કરી છે એમણે અનુભવની. અહીંયા હું પ્રત્યક્ષ અખંડ અનંત ચિન્માત્ર જ્યોતિ સદાય નિરાવરણ નિત્ય ઉદયરૂપ એટલે સદાય નિરાવરણ અથવા જેને આવરણની અપેક્ષા નથી એવો વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવપણાને લીધે શબ્દો અનેક આવે છે પણ ભાવમાં બધું એક સાથે અભેદ છે એમ લેવું વાચ્ય. કથનની અંદર ક્રમ પડે છે, વિકલ્પની અંદર પણ ક્રમ પડે છે, પણ વાચ્ય અક્રમે એક અખંડ અભેદ છે એમ લક્ષ્યમાં લેવું જોઈએ. અને એ ભાવનાનો વિષય છે કે વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવપણાને લીધે એટલે કે મારા જ્ઞાનમાં પંચેન્દ્રિયના કોઈ વિષયોનો, પૂદગળની કોઈ પણ પ્રકારની પર્યાયોનો કે વિભાવની કોઈ પણ પ્રકારની પર્યાયોનો પ્રવેશ નથી, અસર સુદ્ધા નથી. જે વસ્તુ ઘન હોય એમાં કોઈનો પ્રવેશ ન થાય. ગુરુદેવ શ્રી શિયાળાના ઘીનો દ્રષ્ટાંત આપતા, નખ મારવા જાય તો નખની અંદર ફાંસ લાગી જાય પણ ઘીને નખ ન વાગે, નહીતર તો એ સુવાળી ચીજ છે. અને નખ છે એ હાર્ડ પદાર્થ છે, સખત પદાર્થ છે, તો પણ એટલું ઘનિષ્ઠ પરિણમન પરમાણુનું ત્યાં દ્રષ્ટાંતથી બતાવીને એમ કહેતા કે આત્મા એવો સ્વભાવથી વિજ્ઞાન ઘન છે, અનંત વિજ્ઞાન ઘન છે. અહીંયા તો થોડો અવાજ થાય
અવાજ તો ક્યાંક થતો હોય એના ક્ષેત્રમાં થાય છે, પણ ડિસ્ટર્બન્સ ઊભો થાય તો જાણે કે જ્ઞાનમાં અવાજ થાય છે. ક્યાં થાય છે? જ્ઞાનમાં જણાય છે ભાઈ. જ્ઞાનમાં થતો નથી અવાજ કે જ્ઞાનને અવાજ લાગતોય નથી. ન તો જ્ઞાનમાં ક્યાંય પ્રવેશ થવાનો કોઈ અવકાશ કે ગુંજાશ પણ નથી. આ તો સ્વરૂપે કરીને વિજ્ઞાન ઘન છું એવી ભાવનામાં એ જ્ઞાને વિજ્ઞાન ઘન થતું જાય છે. વિજ્ઞાન ઘન હું છું એમ લેવું છે ને અહીંયા તો હું વિજ્ઞાન ઘન છું એવા ભાવમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન ઘન થતું જાય છે. એ ભાવમાં જે પરિણમતું જ્ઞાન છે એ સ્વયં વિજ્ઞાન ઘન થતું જાય છે. રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીમાં ટોડરમલજી લે છે કે સ્વરૂપ ધ્યાનીને સ્વરૂપમાં જ્યારે મગ્ન હોય ત્યારે સ્પર્શાદી વિષયોની કાંઈ ખબર પડતી નથી. એટલે કોઈ સ્પર્શ કરે તો પણ એને સ્પર્શની ખબર નથી પડતી. તો સ્પર્શ કરે નહીં, કોઈ કાપે તો ખબર ન પડે. શરીરના અંગને કોઈ કાપે તો ખબર ન પડે. એક ચિઠ્ઠી આવે છે કે ગુજરાતીમાં પ્રવચન કરો, બીજી ચિઠ્ઠી આવે છે કે હિન્દીમાં પ્રવચન કરો. કેવળી ભગવાન તો દિવ્ય ધ્વનિમાં પ્રવચન કરતા એટલે કોઈ ભાષાવાળાને તકલીફ નહોતી થતી. પણ અહીંયા તો એ પુણ્ય ક્યાંથી કાઢવા? ભાવના જરૂર થાય કે એક સાથે બેયને સમજાય તો સારું, ને એવી કોઈ ભાષાનો વિકલ્પ શું નીકળી જાય તો સારું. પણ એ વિકલ્પ કાંઈ દેખાતો નથી. શું હે સમજાય છે હિન્દી બધાને? તો તમારે તો મૂંઝવણનો પ્રશ્ન છે જરા. કેમ કે કોઈને નારાજ કરવાનો ભાવ નથી અને બંનેને રાજી કરી શકવાની પરિસ્થિતિ નથી. આ વાત સાથોસાથ છે ને. ગુજરાતીમાં 10-20% તકલીફ, 10-20% ઓછું સમજાય એવી તકલીફ થાય કે 10-20%, બાકી હિન્દી વાળાને 100% તકલીફ ઊભી થાય એવું બનવા જોગ છે. તો આટલી વાત તો હિન્દીમાં ચાલી ગઈ હતી એટલે ગુજરાતી વાળાની તકલીફ માનું છું કે દૂર થઈ ગઈ એમ માનીને આગળ થોડું હિન્દીમાં ચલાવીએ. શું હિન્દીમાં તો આ વિષય ઠીક 1 કલાક ચાલી ગયો છે. ગુજરાતીમાં અત્યારે 15 મિનિટ 17 મિનિટ ચાલી ગયો છે. तो यहाँ जो आचार्य महाराज की जो टीका है उसमें शब्द जो है सो है, किंतु आत्म भावना साथ ही साथ प्रत्यक्ष तौर से दिखने में आती है. ये आत्म भावना ही केवल ज्ञान तक का कारण है, ऐसा श्रीमद जी कहते हैं कि आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे. ये आत्म भावना ये चीज है कि जिसमें स्वरूप रस आविर्भूत होता है और स्वरूप रस और तीव्र होता जाता रहता है. ऐसा ही ये निमित्त भूत परमागम होते हैं कि जिसमें अध्ययन करने वाले को आत्मरस बढ़े ही बढ़े, आवे ही आवे, नहीं आवे ऐसा नहीं बने. आगे कहते हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार उतरी हुई जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्रपणा के कारण से, अनुभूति मात्रपणा के लिहाज मैं शुद्ध हूँ, ये भी अपना
शुद्ध स्वरूप की भावना है। कैसा मैं शुद्ध हूं कि जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, अधिकरण आदि मैंने एक कार्य होता है, इसमें कार्य करने वाले आत्मा के 6 गुण हैं, जिसका नाम दिया है ये 6 गुण का, कर्ता, करण, कर्म, करण आदि। ये 6 गुण से एक कार्य निष्पन्न होता है। 6 शक्ति कार्य करने में, कार्य करने वाली शक्ति होने से उसको कारक शक्ति कहते हैं। ऐसे सभी कारकें मैंने 6 कारकें, 6 कारकों मैंने सभी कारकें, कारक जो है वो कारक के पूरे समूह 6 के, उसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो परिणमन है 6 कारकों का, इससे पार मैंने परिणमन से पार निर्मल अनुभूति मैंने त्रिकाली शुद्ध आत्म तत्व। ये 6 कारकों की प्रक्रिया जो है वो तो परिणमन में होती है। तो परिणमन से पार मैंने परिणमन का विषय को आगे जा करके लक्ष्य में से उसको छोड़ करके, क्योंकि ये अधिकार कर्ता कर्म का चला है, तो कर्ता कर्म तो आत्मा की कारक रूप शक्ति दोनों है, तो दोनों क्या 6 शक्ति की बात हम कर दें, फिर कोई प्रश्न इस विषय में नहीं रहे। तो 6 कारकों की जो प्रक्रिया है, उससे पार जो अनुभूति है मैंने आत्मा, शुद्ध आत्मा। यहाँ अनुभूति का अर्थ पूज्य गुरुदेव करते थे त्रिकाली शुद्ध आत्म तत्व, ऐसा करते थे और स्पष्ट करते थे कि यहाँ अनुभूति मैंने निर्विकल्प अनुभव नहीं लेना है, यहाँ अनुभूति मैंने जानन क्रिया नहीं लेना है, ऐसा कहते थे, स्पष्ट करते थे। और ये गुरुदेव की कोई अलौकिक सामर्थ्य थी, यानी ज्ञानातिशय था कि शास्त्र में शब्द कुछ भी पढ़ा हो, वो अपने स्वरूप को देख करके आगम के अर्थ की गहनता को पकड़ते थे। आचार्य महाराज के कथन में जो गहनता रही है, इसकी पकड़ने की जो ज्ञान की सामर्थ्य है, वो इतनी सामर्थ्य गुरुदेव में थी। शब्द भले ही एक शब्द का अनेक जगह प्रयोग हो सकता है, लेकिन जहाँ जो अर्थ सम्यक ज्ञान में भाष्यमान होता है और जो अर्थ भाषने से साध्य की सिद्धि होती है, मूल बात तो यह है कि साध्य की सिद्धि होती है और प्रयोजन सिद्ध होता है, यही सच्चा अर्थ है। शब्दकोश वाला अर्थ सच्चा अर्थ नहीं है, ये बात तो लौकिक में चलते ही है। यहाँ तो ऐसे है कि भावों की दुनिया है, ये आत्मा के शक्ति और परिणमन की बात चलती है तो भावों की ये दुनिया है, ये जगत ही भावों का है। और बहुत से भाव हैं, भाव इतनी मात्रा में है, इतनी संख्या में है कि उतनी मात्रा में शब्दकोश में शब्द नहीं है, करे भी क्या। शब्द कम पड़ते हैं, भाव बहुत हैं, तो एक ही शब्द से अनेक भावों को बताने का प्रयोग करना पड़ता है, बोलने में, लिखने में। इसलिए शब्द एक ही रहता है, जहाँ जो प्रकरण चलता है और जहाँ भाव भाषित होता हो, वहाँ ऐसा ही भाव ज्ञानी निकालते हैं, महापुरुष निकालते हैं, और वो सम्मत करना चाहिए। कभी हमारे मुमुक्षु के ज्ञान में कोई शब्द का कोई अर्थ सम्मत नहीं हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हमारा भाषण में या हमारी समझ में कहीं फर्क है, हमें उसको ठीक कर लेना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारी जो स्थिति है, उस स्थिति में करने योग्य जो है वो इतनी बात है। तो कहते हैं कि सभी कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार मैंने उसको उल्लंघन करके, परिणाम के विषय को उल्लंघन करके, अब जो त्रिकाली सामान्य ध्रुव तत्व है
परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो है, चार भावों से पार, ऐसी जो निर्मल अनुभूति मैंने आत्म तत्व है, मेरा स्वरूप है, उसकी एकमात्र अनुभूति मुझे है। उसमें कोई परद्रव्य प्रभाव का प्रवेश नहीं है और न भेद प्रभेद भी अनुभव गोचर होता है। कारकों का भेद प्रभेद भी मुझे अनुभव गोचर नहीं होता। इसका मतलब ये है अनुभूति का कि मैं अनुभव करने वाला और अनुभव मेरा कार्य, ऐसा कर्ता कर्म का भेद वाला अनुभव जहां नहीं है और ऐसा अनुभव नहीं होवे और एकाकार अभेद अनुभव होवे, उसे ही हम शुद्ध अनुभव कहते हैं, उसको ही शुद्ध स्वरूप कहते हैं। जैसा भाव शुद्ध है वैसा स्वरूप शुद्ध है। ऐसे तर्क करें कि आगम में तो भेद और अभेद दोनों बात पदार्थ की बताई गई है। आत्म पदार्थ की बात में भी यही बात है कि गुण भेद से देखा जाए तो अनंत भेद है और वस्तु की अभेद सत्ता मात्र से देखा जाए तो एक ही पदार्थ है। यहाँ अभेद को शुद्ध कहते हैं और भेद होते हुए भी उसको इतना गौण करते हैं कि कोई मेचक तत्व से अशुद्धता पैदा हो जाती है, लक्ष्य में लेने से, अवलंबन में लेने से। तो भेद कल्पना ऐसा कहते हैं। अध्यात्म शास्त्र में भेद को भेद कल्पना ऐसी बात बोलते हैं। तो अभेद को वास्तविक कहें, भेद को कल्पना कहते हैं। यही कारण इतना ही है कि पदार्थ के समझने के काल में तो भेद पूर्वक ही अभेद समझा जाता है। सीधा अभेद किसी को समझ में आवे ही नहीं, तो वेदांत हो जाएगा। वो कहेंगे कि भेद में अभेद किसी अपेक्षा से नहीं है, वेदांत ऐसा कहेंगे। जैन दर्शन में तो भेद का प्रकरण चले तो उतना भेद प्रभेद विश्व के किसी धर्म संप्रदाय या विज्ञान में नहीं है, उतना भेद प्रभेद पदार्थ का प्रसिद्ध रूप से कहा गया है। फिर भी यहाँ पदार्थ को कैसा है वो दिखाने का प्रयोजन नहीं है, कैसा अनुभव में लेना है वो प्रयोजन है। पदार्थ को समझाने का प्रयोजन नहीं है, पदार्थ को अनुभव में लेने का प्रयोजन है। दो में थोड़ा अंतर होता है। समझाने की प्रक्रिया अन्वेषण काल में आती है, अनुभव काल में नहीं आती है। दो अलग अलग स्टेज की बात है। ये विषय लिया है टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, बड़ा नई चक्र के 266 या 68 नंबर की गाथा का उद्धरण किया है। तच्च अन्वेषण काले, तत्वना अन्वेषण काले युक्ति मग्गेण, युक्ति मार्ग थी तत्व को समझ में लेना पड़ता है। तो उसमें भेद प्रभेद की सब बातें चलती है, लेकिन ये भेद प्रभेद कहां तक, अभेद का निर्णय नहीं होवे वहां तक। भेद से भेद का निर्णय होना आसान है, लेकिन भेद से भेद का निर्णय कराने का प्रयोजन नहीं है, भेद से अभेद का निर्णय कराने का प्रयोजन है। इसलिए कि अगर अभेद का निश्चय हुआ तो उसका अवलंबन हो सकेगा। तो आगे कहा कि नो आराहन समझे, आराधन के समय में ये भेद प्रभेद की कोई आवश्यकता नहीं है। भेद प्रभेद ज्ञान में रह जाते हैं, गौण होकर ज्ञान में जैसे हैं वैसे रह जाते हैं
और अभेद का अनुभव होते ही भेद और अभेद दोनों की परिस्थिति का सही परिज्ञान होता है। अकेले भेद जानने से भेद का सही परिज्ञान भी नहीं होता, लेकिन भेद से अभेद का निश्चय होने के बाद अवलंबन होते ही, अनुभव होते ही फिर भेद अभेद का प्रमाण रूप जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रमाणता को प्राप्त करता है। वहां तक ज्ञान प्रमाणता को प्राप्त नहीं करता है। जानने मात्र से ज्ञान प्रमाण नहीं होता है, अनुभव से ज्ञान प्रमाण होता है। इसलिए प्रमाण के प्रकरण में भी, न्याय शास्त्र में प्रमाण के प्रकरण में भी ये बात चली है कि अनेक प्रकार के जो प्रमाण हैं, 5 प्रकार के, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, आगम प्रमाण, तर्क प्रमाण, इसमें भी अनुभव प्रमाण सबसे बलवान प्रमाण है, ऐसा वहां बताया गया है। ये भी आगम का फाइनल स्टेटमेंट है कि इतने प्रमाण होते हुए भी अनुभव प्रमाण के आगे आगम के प्रमाण को बलवान नहीं बताया है। यही आगम का विधान है, ये भी आगम का विधान है, किसी के घर का नहीं है। इसलिए ज्ञानी भले ही शास्त्र के सिद्धांत के, व्याकरण आदि के, भाषा के सिद्धांत के, अर्थ के सिद्धांत के, दूसरे अनेक प्रकार के जो विशेषताएं हैं जो विद्वत्ता में और पंडिताई में होती है, ऐसी शायद नहीं हो किसी ज्ञानी को, तो भी ज्ञानी कहते हैं ये प्रमाण है, क्योंकि इनके पास अनुभव है। ये प्रश्न चला था भगवान सूर्य कीर्ति के स्थापना के विषय में। ये प्रश्न चला था कि आगम में प्रमाण कहाँ है। तो हम तो ये कहते हैं कि अनुभव प्रमाण बलवान है या आगम। हमारे तो अनुभवी पूज्य माता जी साक्षात विराजमान है, और गुरुदेव ने अपने मुंह से कही जो टेप है वो भी हमारे पास मौजूद है। सुनो, आप दोनों को सम्मत करते हो तो बात तो कोई चर्चा करने की रहती नहीं। अगर आप दोनों को सम्मत नहीं करते तो हम दूर से नमस्कार करते हैं कि चलो हमें कोई बात करने का प्रयोजन भी नहीं है। ऐसा अनुभव जो प्रमाण है, इसकी सब बातें प्रमाण हैं। ऐसे मैं शुद्ध हूं, मैं त्रिकाली शुद्ध हूं, इसलिए शुद्ध हूं कि मेरे में मैं भेद का अनुभव नहीं करता। किसी भी एक गुण का या अनेक गुण का, एक शक्ति का या अनेक शक्ति का, एक धर्म का या अनेक धर्म का मैं भेद रूप अनुभव नहीं करता। और ऐसे अनुभव नहीं करने का ही मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, इसलिए मैं शुद्ध हूं। यहाँ तो बात शुद्ध स्वरूप की चलती है, शुद्ध परिणमन के नहीं चलती, इसलिए मैं शुद्ध हूं। ऐसा अनुभूति मात्रपणा, मैंने ऐसा त्रिकाली स्वरूप में शुद्ध हूं, ऐसे शुद्धत्व की भावना जो है उसमें भी अभेदता की मुख्यता ली है। तीसरा बोल है, पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसा जीव क्रोधादि भाव, इसका जो अनेक रूपता, विश्व रूपता, इसका स्वामी रूप से कभी भी मैं नहीं परिणमता, मैं स्वयं नहीं परिणमता। ऐसा होने से मैं ममत्व रहित हूं। क्रोधादि परिणाम में मैंपना, अपना अस्तित्वपना या स्वामीपना कभी भी मुझे अनुभव में आता नहीं। ऐसा मेरा मूल स्वरूप है। ममत्व रहित जो मेरा स्वरूप है, इसका कारण यह है कि इसका स्वामीपना ही मुझे नहीं आता। ये बात चलती है कैसा परिणमन होता है
कैसा वेदन होता है इसकी बात चलती है। रीति विधि कैसी होती है, निराश्रय होने की विधि कैसी होती है कि ऐसा ममत्व रहित जो स्वरूप है, इसमें अहमपणा होते ही, उसमें स्थिति होते ही, उसमें लीनपणा होते ही निराश्रयपणा होता है। तो किस तरह होता है, ऐसी विधि का परिणाम किस तरह होता है कि ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ऐसा है मैं हूं, ऐसा आश्रय भाव आता है, ऐसे स्थिरता आती है, ऐसे लीनता आती है। तो इस प्रकार से ये स्वरूप भावना का प्रकार चलता है कि मैं निर्ममत्व हूं, ममत्वपणा मेरे में नहीं है। किसका? यहां शरीर की बात नहीं ली और न कोई परिवार कुटुंब की और दूसरे संपत्ति आदि आबरू कीर्ति की कोई बात नहीं ली। यहाँ क्रोधादि भाव कर्म की बात ली कि पुद्गल जिसका स्वामी है। यहाँ से तो इनका विशेषण लगाया, क्योंकि मैं स्वामी नहीं इसका, मेरे स्वरूप में होवे तो मैं उसका स्वामी हो सकता, मेरे स्वरूप में तो है नहीं, इसलिए पहले से बोल दिया कि इसका स्वामी जो है वो पुद्गल है, मैं नहीं हूं। ये बात थोड़ी जोर से आने की जो पद्धति है, इसकी बात है। मौत का बाजा ताव से छूटता है। इस जीव को कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसमें जो एकत्व है वो एकत्व बहुत है, इतना बहुत है कि अनंत काल से छूटा नहीं, अनंत काल से मीटा नहीं, अनंत काल इसमें चला, ऐसा तीव्र एकत्व है। इस तीव्र एकत्व को तोड़ने के लिए धक्का कैसा मारे कि ये आत्मा का परिणमन नहीं, चिद विकार होते हुए भी मैं उसका स्वामी नहीं। स्वामी नहीं क्योंकि मेरे स्वभाव में तो त्रिकाल नहीं है, मेरे स्वरूप में तो त्रिकाल नहीं है। जब मेरे स्वरूप में त्रिकाल नहीं है तो मैं इसका स्वामी क्यों बनूं? कोई तर्क उठाओ है कि फिर इसका कोई स्वामी तो हो सकता है, होगा पुद्गल। ये निश्चय के जोर से निकले हुए आचार्य महाराज के वचन हैं। आचार्य महाराज को पता नहीं है कि मैं क्रोधादि भाव जीव के होते हैं, वो चिद विकार होते हैं, ऐसी जानकारी नहीं है, सो बात नहीं है। वो बात जानते हुए भी ऐसा लिखने के पीछे कोई प्रयोजन की सिद्धि है, प्रयोजन वशात ऐसा कथन आता है जो सम्यक है, सत्कार करने योग्य है और उपासना करने योग्य है। सत्कार करने योग्य तो है, सम्मत करने योग्य तो है, लेकिन उपासना भी करने योग्य है, ऐसी ये बात है। वो इस तरह से कि अपनी रीति से, अपने ढंग से, आभास में तो अवगुण हो जाएगा, लेकिन जिनको परिपूर्ण शुद्ध होना है उनको अधिक अवगुण में जाने की परिस्थिति होती नहीं। ये तो मार्ग ही यहाँ से शुरू होता है। यहाँ तो सूत्र लगाए हैं हैदराबाद मंडल ने, पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है। तो जो पूर्णता के पीछे इस मार्ग में प्रवेश करते हैं, इस लक्ष्य से, इस ध्येय से, उनको तो शुद्धि की ओर ही जाने का होता है। अगर अशुद्धि की ओर जाने का कहीं भी प्रसंग हो गया तो भी वो भटकेगा नहीं, भूलेगा नहीं। इस कारण से नहीं भूलेगा कि उसका लक्ष्य पूर्ण शुद्धि पर है, इसलिए उनको भीतर में लाइट हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो सम्मत नहीं करेगा। जिस लाइन से अवगुण की प्राप्ति हो, जिस प्रकार से अवगुण बढ़े, जैसे निश्चयाभास में बढ़ता है, राग को पुद्गल कहना उसमें जिम्मेवारी बहुत है। या तो जीव को स्वच्छंद हो जाए, या तो अगर स्वच्छंद नहीं हुए और सम्यक परिस्थिति हो गई तो स्वरूप आश्रय हो जाए। दो बात है
एक्सट्रीम पॉइंट वाली बात है। अगर अपने और आ जाता है राग को पुद्गल का कह करके, तो इसको पुद्गल का कहना ठीक है, हमें मंजूर है। और पुद्गल का कह करके वास्तव में पुद्गल द्रव्य का मान लेवे और राग करता रहे, राग में कर्ता कर्मपणा के अनन्य एकत्व क्रिया चालू रहे, तो दुर्गुण बहुत बढ़ जाएंगे, अवगुण बहुत बढ़ जाएंगे, वो दोष के मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। तो ये बात वहाँ लाल बत्ती जिसको रेड लाइट कहते हैं वो रख करके फिर आगे चलना है स्वाध्याय में। तो कि हमें तो हमारी पूर्ण शुद्धि की भावना से स्वाध्याय जब करते हैं तब राग को पुद्गल कहने में आचार्य महाराज का जो अभिप्राय है, सम्यक अभिप्राय, उसको हम अंगीकार करेंगे, उसको हम समझेंगे, उसका सत्कार करेंगे, उसका आदर करेंगे और इस तरह सम्मत करेंगे। तो ऐसे पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो क्रोधादि भाव, मैंने अनेक प्रकार के विभाव भाव, सभी प्रकार के विभाव भाव, इसका स्वामी मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, विश्वरूप मैंने अनेक प्रकार से होते हैं। मैं कभी इसमें भूल नहीं खाता। जैसे कि मन की शांति होती है, जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिया, रोमांच खड़े होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। जब आत्मा के विकल्प वाला भाव चलता है, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, निर्विकल्प स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, और अहमपणा करने का भाव ज्ञानी को आता है, और ज्ञानी को भी विकल्प होता है। उस वक्त भी शाता होती है। कसाय बहुत मंद होता है, मंदतर होता है, तो शाता होती है, शांति आती है, मानसिक शांति। ज्ञानी को भूल नहीं होती है इसमें। वो अच्छी तरह जानता है कि ये विभाव का परिणाम है। विश्वरूप, अनेक रूप, ये बहुरूपिया है, बहुत रूप लेकर के आता है, भिन्न भिन्न प्रकार का। तो एक शांति का रूप लेकर आया हो। काय की शांति? मन की शांति, ये विकल्प की शांति है। उसका स्वामी मैं नहीं, वो जाति को पिछानता है। परिणाम की जो जाति है, विभाव जाति है, उसको पिछानता है। फिर किसी भी रूप लेकर के आ जाए, वो एक कण को भी वो अपने में मिलावट नहीं होने देगा, अपनत्व इसमें होगा ही नहीं। ऐसा एक भिन्नत्व हो गया है और ऐसा एक निर्ममत्व रूप भाव हो गया है। स्वरूप ऐसा है, इसलिए स्वरूप ही निर्ममत्व रूप है। इसके आश्रय से, इसकी भावना के अवलंबन से, भावना मैंने अवलंबन से, इसमें ममत्व नहीं होता। तो कहते हैं कि उस रूप नहीं परिणमता में, बहुत बढ़िया बात है ये, उस रूप नहीं परिणमता मैंने क्या, कि स्वयं ऐसे अपने आप को अनुभव करता है कि मैं तो परिपूर्ण शुद्ध निर्ममत्व रूप से यूं का यूं ही रहता हूं। परिणाम के दोनों अंश परिणम जाते हैं, ख्याल में आता है, ज्ञान में आता है, क्योंकि अनुभव तो इसमें है। फिर भी मेरा स्वरूप जो त्रिकाल है वो वैसा का वैसा रहता है। मैं उस रूप होता नहीं कभी, यूं का यूं रहता हूं, हमेशा यूं का यूं रहता हूं। फिर राग हुआ ने तो मैंने तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मैं कर सकता नहीं, इसलिए नहीं मैंने किया। कर्ता कर्म में तो ये बात है कि जीव राग को कर सकता है क्या, ये पहला सवाल है। तो अज्ञानी ये कहेगा कि नहीं, जीव तो राग को करता है। तो कहते हैं कि ज्ञानी भी कहते हैं कि ज्ञानी तो सोच समझ के कहते हैं, परिणमन देख करके जीव का, लेकिन वो तो अनुभव करता है अपने रूप से। ज्ञानी कहेंगे कभी कि राग जीव करता है, ज्ञानी ये भी कहेंगे कि राग जीव नहीं करता है, दोनों बात कहेंगे। लेकिन इसका अनुभव यह है
कि मेरे स्वरूप में राग करने का कोई परिस्थिति ही नहीं है, मेरे स्वभाव से स्वरूप से राग करने की कोई परिस्थिति ही नहीं है, ऐसा अनुभव में रहते हुए, ऐसे अनुभव में साक्षात रहते हुए कहते हैं कि मैं नहीं करता, और परिणाम का अंश देख करके ये भी कहेंगे वो जीव करता है, ऐसा भी कहेंगे। तो हमें किस विधि से वो स्वरूप को साधते हैं, इसी को हमें समझना है, उसी के समझ करके हमें अंगीकार करना है, उपासना करनी है। तो हमारा लक्ष्य यहाँ जाना चाहिए कि वो किस तरह रहते हैं। जब राग इनके परिणाम में होते हैं, बुद्धिपूर्वक राग को स्वयं भी जानते हैं, दूसरे लोग भी जानते हैं कि ऐसा राग हुआ इनको, ये पूजा का राग करते हैं, स्वाध्याय का राग करते हैं, बोलने का राग होता है, ये सब जानते हैं, दूसरा भी जानते हैं। इतना मोटा राग है ये, स्थूल, फिर भी उसमें ममत्व नहीं है, स्वामीपना नहीं है। तो कैसे नहीं है कि मेरे स्वरूप में ऐसा करने का कोई सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। मैं राग का अकर्ता स्वभावी हूं, ज्ञाता स्वभावी हूं, ये अस्ति से है, और अकर्ता स्वभावी हूं, ये नास्ति से है। ऐसा मेरा स्वरूप है, और ऐसा मेरा स्वरूप है, मुझे प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। जब मुझे प्रत्यक्ष ऐसा मेरा स्वरूप अनुभव में आ ही रहा है, तो फिर राग मैं करता हूं ऐसा कैसे प्रतिभाषित होगा? होता है वो मालूम पड़ता है, जीव के परिणाम के एक अंश में होता है, वो भी जरूर मालूम पड़ता है, लेकिन मैं करता हूं ऐसा कभी मालूम नहीं पड़ता, ऐसा एहसास नहीं होता, ऐसा अनुभव नहीं होता। ये एक परिणमन की जो अलौकिकता है, सूक्ष्मता है, जो समझो कि इसकी खूबियां जो है, इसको अगर समझ में आवे तो स्वरूपालंबन भीतर में क्या चीज है और इसके पीछे कितना बल है, कितना फोर्स है, वो समझ में आता है। राग को पुद्गल का कहने में यही फोर्स काम करता है। जानते हैं कि जीव के परिणाम के एक अंश में है, ऐसा जानते हुए भी ये पुद्गल का है ऐसे कहने के पीछे कोई फोर्स है, कोई जोर है। ये यही जोर है कि अवलंबन कैसे लेते हैं, इसका ये द्योतक शब्द है कि हम कैसे किस बल से अंदर में जाते हैं, किस बल में हमारे स्वरूप में पकड़े हुए एकत्व में रहे हैं। इस एकत्व को दर्शाने के लिए ये बात कही गई है। तो कहते हैं कि इसका स्वामी पुद्गल है, मैं तो स्वरूप से ही निर्ममत्व हूं, परिणाम में तो ममत्व करूंगा ही कैसे मैं, जब स्वरूप से मैं निर्ममत्व हूं। ममत्व करने के मारे में कोई मेरे में कोई शक्ति नहीं, न कोई शक्यता भी है, सकता नहीं, मैं इसको कर सकता नहीं, इसको करूं कैसे? जैसे पुद्गल को भोग नहीं सकता तो पुद्गल को कर नहीं सकता, वैसे राग को कर नहीं सकता, राग को भोग नहीं सकता। उतनी बात है। इतना उसको पुद्गल के जिस स्थान में पुद्गल रहता है उसी स्थान में उसको रख देते हैं, इसलिए यहाँ से कथन करने की बात है। ऐसे कथन का जो ध्वनि है, अंतर्ध्वनि है, अंडरटोन जिसको कहते हैं, वो इस प्रकार से निकलता है यहाँ से। ऐसे स्वरूप की जो भावना है ये ऐसे भाई जाती है। क्रोधादि परिणाम की अनेक रूपता देख करके भी, जान करके भी स्वरूप की भावना तो ऐसी ही भाई जाती है जैसे यहाँ आचार्य महाराज के वचन हैं कि ये पुद्गल के हैं। इस शास्त्र में तो बहुत लिया है। अजीब अधिकार चालू किया,
वहां से ये चालू कर दिया है, राग पुद्गल का है, पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल के परिणाम है। होता कर्ता कर्म में भी ये बात चालू रखी है, और आगे तो आदि मध्य अंत में पुद्गल है ऐसे कहेंगे। सब जानते हैं, लेकिन कितना दृष्टि बल है, दृष्टि के विषय जो है उस पर कितनी पकड़ है, साधक परिणामों की पकड़ कितनी है, ये कैसे प्रसिद्ध करे, अरूपी भाव को कैसे बताएं, तो ये शैली है बताने की, पद्धति है बताने की। उसको अगर ठीक तरह समझें तो इसका जो भाव है वो पकड़ने में आता है, तो तत्व पकड़ने में आता है। अगर भाव नहीं पकड़ने में आवे तो ये तत्व नहीं पकड़ने में आता है, ऐसा होता है। चिन्ह मात्र ज्योति, चिन्ह मात्र ज्योति, ऐसा जो अपना आत्मा, उसका वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष द्वारा परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से अभेद हूँ। ज्ञान मैंने चैतन्य विशेष और दर्शन मैंने चैतन्य सामान्य। एक चैतन्य का ही सामान्य विशेष दो अंग है, उसको दर्शन और ज्ञान कहने में आता है। तो कहते हैं कि चिन्ह मात्र ऐसी जो आत्म ज्योति, चिन्ह मात्र ऐसे, चैतन्य शब्द को चित्त और चिन्ह कह देते हैं। अभेद भाव लेना है ना, तो संक्षेप करते हैं, शब्द को भी गुण को भी ऐसे संक्षेप में ले लेते हैं। चैतन्य ऐसा गुण है तो पदार्थ को चिन्ह अथवा चित्त ऐसा कहते हैं। चित्त स्वभावाय भावाय चित्त। विकल्प को भी और शब्द को भी जितना हो सके इतना छोटे कर देते हैं। लंबाने की बात नहीं है ना, उसको तो अभाव करना है, तो भाषा में भी यही प्रयोग चलता है। भाव अनुसार चिन्ह मात्र ज्योति, बस वस्तु स्वभाव से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण चैतन्य पदार्थ हूँ। ऐसा परिपूर्ण मेरा चैतन्य विशिष्ट स्वभाव है, उससे मैं पूर्ण हूँ, मैंने बेहद हूँ, अनंत हूँ, अमाप हूँ, जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा मैं बेहद हूँ, उसको परिपूर्ण कहते हैं। परिपूर्ण मैंने सीमित नहीं कि यहाँ पूर्णता होगी, ऐसा नहीं लेना है। परिपूर्ण मैंने बेहद हूँ, इतना बेहद स्वभाव है कि स्वभाव को कोई हद नहीं होती। पूज्य गुरुदेव श्री एक दफे बहुत बड़े अच्छी बात, भाव भाषण हुए ऐसे एक बात ले ली थी। पहले तो ऐसे ही कोई भूगोल का प्रश्न पूछे, ऐसा प्रश्न पूछा कि इस पृथ्वी पर पानी ज्यादा है या जमीन ज्यादा है, क्षेत्रफल किसका ज्यादा है। तो ऐसे जिसको भूगोल का ज्ञान है, पढ़े हुए हैं भूगोल, वो तो कहेंगे कि पानी ज्यादा है। ये नक्शा देख करके सब बड़े बड़े समुद्र जो हैं उसका क्षेत्रफल इतना है कि जमीन का क्षेत्रफल इसके आगे कम है। तो बोले कि साहब पानी ज़्यादा है, जमीन तो कम है इसकी बराबरी में। तो गुरुदेव ने ना बोला कि नहीं जमीन ज़्यादा है। क्या कहा? पानी के नीचे भी जमीन है, पानी के नीचे पानी थोड़ा है क्या? पानी के नीचे भी जमीन है। तो गुरुदेव तो विचक्षण बहुत थे, पढ़े लिखे इतने नहीं थे, लेकिन ज्ञान न मानो कहाँ से अंदर से निकला हुआ था। सब बात में ऐसी है। तो बोले कि ठीक है, बात तो कुछ दूसरी करनी है हमें। फिर बात मूल बात पर आए कि यह समुद्र कितना गहरा होता हुआ। तो मेरी भी उपस्थिति थी, मैंने बोल दिया, मैं तो पढ़ा हूँ भूगोल, तो मैंने बोला कि सब करीब 5.5-6 मील से ज़्यादा ऊंडाई नहीं है।
इधर जो हिमालय है, माउंट एवरेस्ट, इसकी भी करीब करीब जो ऊंचाई है वर्टिकली, वो 5.5-6 माइल से ज़्यादा नहीं है, माइल, किलोमीटर नहीं, माइल। और ऐसे जो खड्डा है पानी का, ये समुद्र जिसको बोलते हैं, उसकी गहराई भी 5.5-6 माइल से, ये पैसिफिक और 2 बड़ा समुद्र है, उसकी ऊंचाई इससे ज़्यादा नहीं है। तो कि समुद्र को भी नीचे तल आता है, लेकिन ये स्वभाव समुद्र के नीचे कोई तल नहीं है। कितनी भी गहराई में ज्ञान जावे, कितनी भी इसकी गहराई को समझे, नीचे कोई तल नहीं दिखता है। ऊंडा 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 स्वभाव, कितना ऊंडा के बेहद ऊंडा है, कोई हद नहीं इसकी, इतना बेहद ऊंडा है कि पीछे कोई तल ही नहीं आता है। ऐसा स्वभाव का समुद्र, चैतन्य पिंड, ज्ञान दर्शन पिंड आत्मा है, ऐसा करके स्वरूप को दर्शाते थे। तो ये तो मामूली बातचीत में, चर्चा में ये सब बात चलती थी, वैसे चर्चा के समय में नहीं, मामूली बातचीत चले तो इसमें ऐसे स्वभाव की बातें चल जाती थी। यही प्रत्यक्ष समागम का तो यही लाभ है कि जिसमें कभी कब बात, कौन सी बात चल जावे, कोई इसका पता नहीं चलता। ऐसा में आकाश आदि द्रव्य की माफिक पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ, ऐसे एक भावना लेते हैं। उसमें आकाश का दृष्टांत लिया है। तो आकाश का दृष्टांत क्यों लिया है? कि आकाश एक तो अरूपी है, जीव भी अरूपी है। दूसरा, आकाश 10 दिशा में इतना व्याप्त है बेहद रूप से कि जिसको कोई आगे पीछे ऊपर नीचे 10 दिशा में कहीं भी आधार नहीं है कोई। ये खुद ही क्षेत्र से इतना बेहद बड़ा है कि कोई उसको आधार, इससे कोई बड़ी चीज होवे तो इसका आधार होवे ने, आधार कैसे तक टिका है। आकाश इस विश्व में एक पदार्थ है, वो कैसे टिका है? कोई आधार से टिका है क्या? को निरालंब है, ऐसा मैं निरालंब हूं, ऐसा कहते हैं। देखिए भावना स्वरूप की ये भावना है, अर्थघटन करने का सवाल नहीं है। मैं त्रिकाल निरालंब निरपेक्ष हूं, ऐसी एक भावना है स्वरूप की। मुझे किसी का अवलंबन के आधार की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। कब नहीं है? 3 काल में नहीं है, अभी भी नहीं है। ऐसा मैं वस्तु विशेष हूं। पारमार्थिक मैंने वास्तविक, पारमार्थिक मैंने परम प्रयोजन भूत, ऐसा मैं वस्तु विशेष हूं कि जिसमें किसी का अवलंबन की अपेक्षा की कोई जरूरत नहीं है। पानी मिले, अन्न मिले तो प्राण टिके तो मैं टिकूं, सो बात भी नहीं है। हवा मिले तो मैं जीऊं, ये बात नहीं है। मेरी जीवन शक्ति, जीवत्व शक्ति, ये भी अनंत है, बेहद है। किसी की अपेक्षा नहीं, किसी का आधार की अपेक्षा नहीं, अवलंबन की अपेक्षा नहीं है। वस्तु में तो सामर्थ्य है, लेकिन परिणाम भी कोई ऐसा सामर्थ्य वाला है कि अनंत सामर्थ्य को झेलता है। एक दफे तो एक समय में उसको झेलता है। त्रिकाली को भी एक समय में झेलता है वो, ऐसा इनका भी सामर्थ्य है। ये द्रव दृष्टि प्रकाश में आता है कि दृष्टि है तो पर्याय एक समय की, सम्यक श्रद्धान जिसको कहते हैं। क्या करती है कि त्रिकाली पर कब्जा करती है। वो तो कब्जा में ले लेती है उसको। अब देखिए कौन बड़ा कब्जे में आने वाला बड़ा या कब्जा करने वाला बड़ा, कौन बड़ा है? शैली है सब। ये सामर्थ्य दिखाने की, ताकत दिखाने की, ये सब शैली है। तत्व जो है सो है।
परिणाम तो एक समय का होता है, फिर भी उसमें ये चीज है। ऐसे ज्ञान भी एक समय का होता है, लेकिन त्रिकाली को भी वो ग्रासीभूत करता है कि नहीं करता है? ग्रासीभूत कर लेता है। ग्रहण करने का, ग्रास करने का इसका स्वभाव है। एक जीव को क्या, अनंत सिद्धों को, अनंत जीवों को, सभी को ग्रासीभूत कर लेता है एक समय में। उतनी तो एक समय की ताकत, मूल वस्तु की तो कहे का क्या कहे, ये तो अंदाज लगाने की बात है। अंदाज क्या, भाव भाषण करने की बात है। अनुमान करने की बात तो क्या, अनुमान में क्या आएगा? ऐसा मैं आकाश आदि पदार्थ की तरह पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं, इसलिए ऐसा होने से, ऐसा कहते हैं, ऐसा होने से मैं मोह का क्षय करूंगा। ऐसा होने से किस प्रकार मैं मोह का क्षय करूंगा, इस विधि का भी निरूपण करेंगे। अभी तक जो निरूपण किया वो मेरा परिणाम मेरे कैसे स्वरूप का अवलंबन करता है कि जिससे मोह क्षय होता है, ऐसा स्वरूप की भावना पूर्वक ये बात कही अपने स्वरूप की। और अभी कहेंगे कि किस विधि से मैं अवलंबन लेता हूँ, ये बात आगे कहेंगे। यहाँ समय हो चुका है। चरण